Hello everyone. We are starting with the third part of the chapter The Enemy written by Pearl S. Buck. Till here, we have read that Dr. Sadao had operated upon the patient, or in other words, the prisoner, and that person was now recovering. And Hannah was serving the food to that person because the servants refused to serve him. Now, here a discussion was going on between the American prisoner and Hannah. Now, you will soon be strong. We are starting with the chapter here with the third part. Now, you will soon be strong. Hannah is saying to that person, to that American prisoner of war, but she said not liking him. She didn't like him and yet moved to comfort him. But still she was doing the duty as her husband. He did not answer. The person, the American prisoner, did not answer. When Sadao came in the third day after the operation, now 3 days had been spent now, and Sadao came the third day. He found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. The young man was sitting, and because due to the exertion, he was bloodless. He was looking like a bloodless person. Lie down, Sadao cried, "Do you want to die?" Sadao is asking him, he is scolding him, कि लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो? He forced the man down gently and strongly and examined the wound because he was a doctor and he had to see his patient first of all. That's why he is saying कि तुम लेट जाओ, और फिर उसको वो एग्जामिन करता है. You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. कि अगर तुम इस तरह से फिर से एक्सर्शन करोगे, कुछ ऐसा काम करोगे टायर्डनेस वाला, तो तुम अपने आप को यू मे किल योर सेल्फ. वट आर यू गोइंग टू डू विद मी? द बॉय मटर्ड. अब वो बॉय पूछ रहा है उससे, वो अमेरिकन प्रिजनर जो है, जो पेशेंट है, वो कहता है कि क्या करने वाले हो तुम मेरे साथ? ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17. अब जो है वो उसकी एज ओनली 17 ईयर्स तक की लग रही है. ही वॉज ओनली इन द यूथ. आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर? क्या तुम मुझे पुलिस को दे दोगे? फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर. ही वॉज क्वाइट. सदाओ वॉज क्वाइट नाउ. ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन. वो एग्जामिन कर रहा था उसको. एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन. और उसने वो क्विल्ट जो थी हटाई. आई डो नॉट नो माई सेल्फ वट आई शैल डू विद यू. मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ. आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस. डॉक्टर सदावी सिंह कि मुझे तो पहले ही तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए था. यू आर अ प्रिजनर ऑफ वार. नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग. Now at that time when Sadao saw that the man was going to say something, कि वो जो आदमी ना कुछ बोलने वाला था, तो एकदम से डॉक्टर सदाव ने रोक दिया. नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग. ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वाज अबाउट टू स्पीक. अगेन डॉक्टर सदाव सेड, डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट. मुझे नहीं जानना तुम्हारा नाम, जब तक मैं नहीं पूछूं कुछ नहीं बोलना. दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आईज and turned his face towards the wall. He said, okay, I will not tell anything. He whispered, his mouth a bitter line. His mouth a bitter line means कि वो टेंशन में भी है इस टाइम, नर्वस भी है. What Dr. Sadao will do to him. Outside the door, Hannah was waiting for Sadao. He saw at once that she was in trouble. When Dr. Sadao saw Hannah and he came to know that she was in trouble, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. Hannah told Sadao, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. The servants were now refusing. They were saying that they would not stay here in this house if Dr. Sadao and Hannah would hide this man here anymore. She said she tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. कि ये सारी वर्डिंग्स किसकी है? यूमी की. यूमी ने किसको बताया? हैना को बताया. क्या बताया? कि बाकी सर्वेंट्स जो हैं, गार्डनर है, कुक है, वो सब क्या बोल रहे हैं कि हमें इतना टाइम हम अमेरिका में बिता कर आए हैं, तो हम अमेरिकन्स जैसे ही हो गए हैं, हम अपने कंट्री के बारे में भूल गए हैं. उन लोगों को, सर्वेंट्स को लगता है कि हम अमेरिकन्स को पसंद करते हैं. वी लाइक अमेरिकन्स, दैट्स वाई वी आर सेविंग हिम. Sadao said harshly, it is not true. Americans are
are enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. So Sadao जो है, he is telling about that Americans are our enemies, but still he had to perform his duty as a doctor also, which he could not avoid. The servants cannot understand that, she said anxiously, कि servants को ये बात समझ नहीं आती. No, he also agreed. Neither seemed able to say more. Both of them just stopped and somehow the household dragged on. घर जो था चलता रहा, इसी तरह से चलता रहा. The servants grew more watchful, और servants उनको और ज़्यादा watch करने लगे carefully. Their courtesy was as careful as ever. It means their respect for Dr. Sadao and Hannah was as same as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. लेकिन अब वो एक कोल्डनेस से, बिल्कुल रूखे, रफ से बन गए थे उन लोगों के लिए, और उन लोगों को ऐसे रूड से तरीके से देखने लगे थे. टू whom they were hired. It means आईज में उनके कोल्डनेस आ गई, आईज से उनको वॉच करने लगे, बट रिस्पेक्ट जो थी वो एज इट इज करते थे. It is clear what our master ought to do, the gardener said one morning. अब गार्डनर जो है ये सब बात कर रहे हैं आपस में, गार्डनर कुक वगैरह, और ये कह रहे हैं कि हमारे मास्टर को पता है कि उसे क्या करना चाहिए. He had worked with his flowers all his life and had been a specialist too in moss. गार्डनर की क्वालिटी बताई जा रही है ये, कि इस गार्डनर ने सारी लाइफ अपनी इन फ्लावर्स के साथ ही काम किया है, और वो एक स्पेशलिस्ट है मोस में. मोस क्या होता है? एक काई की तरह जैसे बोलते हैं. इट मीन्स इट इज़ अ सी प्लांट विदाउट हैविंग एनी फ्लावर्स. रॉक्स पे कहीं पर भी वही ग्रीन जो है, जिसको हम काई एक तरह से कहते हैं, कि मोस को उसी तरह का ही ये प्लांट होता है. फॉर सदाओज फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस गार्डन्स इन जापान. इस गार्डनर ने सदाओ के फादर के लिए भी, इट मीन्स जब सदाओ के फादर हुआ करते थे तब भी वो यहीं पर काम करता था. एंड ही हैड मेड वन ऑफ द बेस्ट मोस गार्डन्स इन जापान, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. और वो इतना गार्डन को इतना स्मूथ रखता था कि कोई पत्ता या पाइन नीडल भी उस वेलवेट को, उस ग्राउंड को, उसकी ब्यूटी को रिड्यूस ना कर दे. मार्ड मीन्स रिड्यूस या लेसन ना कर दे, कम ना कर दे. कि मीन्स वो इतना मेंटेन करके उस गार्डन को रखता था ये गार्डनर. माई ओल्ड मास्टर्स सन नोज वेरी वेल वट ही ought टू डू. और वो क्या कहता है, अब वो डिस्कशन जो चल रही है उनके आपस में, मेरे मास्टर के बेटे को पता है कि उसे क्या करना चाहिए. एक लेकिन रूडनेस तो है इनकी वॉइस में. ही नाउ सेड पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज इज स्पोक. वो बुश पे से बर्ड वगैरह तोड़ रहा है और साथ साथ वो बोलता जा रहा है. व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड. कि अगर वो आदमी मर ही रहा था तो क्यों नहीं मरने दिया उसे, क्यों बचाया. दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ. ये कौन कहता है? कुक. द कुक सेड कंटेम्प्टुअसली. कंटेम्प्टुअसली होता है एक स्कॉर्नफुल वे में, चिढ़ के जो बोला जाता है. सो जो कुक है, जो लेडी है ये, और वो डिस्कशन वाज गोइंग ऑन एंड शी सेड कि हमारे मास्टर ना इतना प्राउड फील करते हैं अपने आप को कि हाँ मैंने एक लाइफ बचा ली, कि वो किसी की भी लाइफ को बचा रहे हैं. इट मीन्स वो एक हमारा जो एनिमी है हमारे कंट्री का, उसकी लाइफ को ही बचा रहे हैं. इतना उनको अपने ऊपर प्राउड है. शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक स्किलफुली एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ अ विस्तारिया वाइन. और ये बोलते बोलते वो कुक जो है एक चिकन की नेक को वो स्प्लिट करती है, अलग करती है स्किलफुली. वो लोग वहाँ पे नॉन वेज हैं, सो वो उसको अलग करती है, और उसको जो फ्लटरिंग ब्लड, तड़पता हुआ जो बर्ड है, चिकन है, वो फाउल जो है, और उसके ब्लड को वो विस्तारिया वाइन में, बेल में डाल देती है, उसकी जड़ों में, रूट्स में डाल देती है. ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट. तो वैसे ही नॉन वेज ये लोग खाते हैं, तो यहाँ पे लाइन सिंपली एक बताई गई है. इट इज़ एन अननेसेसरी लाइन हेयर. ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स. सबसे ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइजर ब्लड होता है, और गार्डनर इसका एक भी बूंद वेस्ट करने नहीं देता. इट मीन्स वो फाउल जो है घर पे बना लेंगे वो फूड में, और जो इसका ब्लड है वो रूट्स में, पौधों के रूट्स में डाल रहा है वो. इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think. Now discussion again come to this topic. It is the children of whom we must think, यूमी said sadly. यूमी कहते हैं हमें सिर्फ बच्चों के बारे में सोचना चाहिए.
What will be their fate if their father is condemned as a traitor? अगर इसके फादर को, इन बच्चों के फादर को, डॉक्टर सदाव को ट्रेटर मान लिया जाए. ट्रेटर कौन होता है? देशद्रोही. तो तब इन बच्चों का क्या होगा? They did not try to hide what they said from the ears of Hannah. These all three, the gardener, the cook and Yumi, they were standing and they were talking among themselves. They knew that Hannah was standing there and she was hearing everything. But still they did not stop because they wanted Hannah to hear all whatever they were talking. As she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, Hannah जो थी veranda में flowers arrange कर रही थी, and she knew they spoke on purpose that she might hear. और उसको Hannah को भी पता था कि ये जानबूझकर, on purpose means जानबूझकर बोल रहे हैं ताकि वो सुन सके. That they were right, she knew to inmost of her being. और Hannah को भी पता है कि ये ठीक ही तो बोल रहे हैं. But there was another part of her which she herself could not understand. But हैना जो है, हैना भी और डॉक्टर सदाव भी, दे वर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. टू पार्ट्स में कैसे स्प्लिट अप है कि एक वो चाहते हैं कि इस एनिमी को ये बाहर फेंक दें, दूसरा कि उसको अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म कर रहे हैं, ये बचा भी रहे हैं. इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर. ऐसा नहीं है कि उनको उस प्रिजनर से कुछ लाइकिंग हो गई है, कुछ इमोशनल उनका टच हो गया है. शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर. उनको प्रिजनर ही लगता है. एंड शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन येस्टरडे when he had said in his impulsive way. और लास्ट डे, प्रीवियस डे की बात है, जब उस प्रिजनर ने एकदम से, इम्पल्सिव वे क्या होता है? सडनली, एकदम से उसने बोला, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज टॉम. उसने अपना नाम बताया एंड हिज नेम वॉज टॉम. तो तब भी हैना को वो पसंद नहीं आया था. शी हैड नॉट लाइक्ड हिम एट दैट टाइम ऑल्सो. शी हैड ओनली बॉर्ड हर लिटल डिस्टेंट बो. उसने थोड़ा सा सिर झुकाया कि ठीक है. She saw hurt in his eyes. और जब एक पर्सन अपना नाम बता रहा है और हैना ने सिर्फ एक सिंपल सा सिर झुकाया, तो उसको, उस पर्सन को थोड़ा हर्ट हुआ, उस प्रिजनर को हर्ट हुआ उसकी फीलिंग्स को. बट शी डिड नॉट विश टू assuage it. बट हैना को कुछ नहीं लग रहा था कि मैं इसको और ज़्यादा कंफर्ट करूं या कुछ भी करूं, ऐसा उसको कुछ भी नहीं लगा. assuage का मीनिंग क्या होता है? कि किसी की जो हर्ट फीलिंग्स हैं उनको कम करना. अब यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि उस प्रिजनर को, इट मीन्स टॉम को, उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई, तो हैना उसको कुछ भी कंफर्ट करना नहीं चाहती थी, उस हर्ट फीलिंग्स को कम करना नहीं चाहती थी. इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस. वैसे भी वो इस घर में मुसीबत ही है. एज फॉर सदाव, एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली. सदाव वॉज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी वेरी वेल of examining the wounds of the prisoner. The last stitches had been pulled out this morning. Last के stitches भी हटा दिए गए थे. And the young man would in a fortnight होता है 15 days, be nearly as well as ever. और वो 15 days में ठीक हो जाएगा बिल्कुल. Sadav went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police. अब देखो, वो ध्यान से सुनो, किसको लेटर लिख रहा है? वो चीफ ऑफ पुलिस को लेटर लिख रहा है सदाव. और सारा का सारा केयरफुली टाइप द लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर. उसने सारा स्टार्ट किया ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी की 21st डेट को. एन एस्केप्ड प्रिजनर वाज वाश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. मेरे घर के बाहर किनारे पर वो आकर, वाश्ड अप मीन्स लहरों से टकरा के बाहर आ गया, गिरा पड़ा था. सो फार ही टाइप्ड, यहाँ तक लिखा. एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ हिज डेस्क. और यहाँ पे छोड़ के उसने अनफिनिश्ड इसको छोड़ दिया और अपने सीक्रेट ड्रॉअर में इसको रख दिया. पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट. इसके 7 डे के बाद, 7 डेज पास हो गए. ऑन द 7th डे आफ्टर दैट 2 थिंग्स हैपेंड. क्या क्या हुई? एक तो सर्वेंट छोड़कर चले गए. इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर. सभी सर्वेंट छोड़कर चले गए. देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वेयर कॉटन कर्चीफ्स. उन्होंने अपने सारा सामान जो था वो बड़े बड़े कपड़ों में, कर्चीफ्स मीन्स बड़े बड़े हैंकीज टाइप मतलब कपड़ों में, उन्होंने अपना सामान बांध लिया सर्वेंट्स ने. When Hannah got up in the morning, nothing was done. अब हैना सुबह उठी है तो उसने देखा कुछ भी काम नहीं हुआ पड़ा है. हाउस भी सफाई नहीं की, हाउस नॉट क्लीन्ड एंड फूड नॉट प्रिपेयर्ड. एंड शी न्यू व्हाट इट meant. She knew that the servants were now leaving the house. She was dismayed and even terrified. She was sad here. उसको दुख भी हुआ काफ़ी और डर भी गई. Even terrified.
But her pride as a mistress would not allow her to show it. But she was a mistress, she was the owner of the house. She did not want to show her terror or her dismay to the servants. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen. बजाय अपनी हार्ट फीलिंग्स को शो करने के वो ग्रेसफुली खड़ी रही जब वो सर्वेंट्स उसके पास आए, और शी पेड देम ऑफ, उनको पैसा, उनका अमाउंट जो भी बनता था वो उनको दिया, उनकी पैसा, एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर. They were crying, servants were crying, but she did not cry. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house. कुक और गार्डनर तो इसके फादर के, सदाओ के फादर के टाइम से ही थे. एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन. यूमी लव्ड द चिल्ड्रन वेरी मच. शी वॉज क्राइंग फॉर दोज चिल्ड्रन. शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हैना. एक बार जाके बाहर तक वापस आई यूमी और उसको बोलती है हैना को, इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी. अगर वो ज़्यादा रोता है बच्चा तो मुझे बुला लेना. आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस and you know where my house is. Thank you, Hannah said smiling. But she told herself she would not send for Yumi however the baby cried. कितना ज़्यादा रोता रहे बच्चा, लेकिन मैं यूमी को नहीं बुलाऊंगी. She made the, क्यों नहीं बुलाएगी? Because Yumi was going herself. Hannah नहीं सेंड कर रही है उसको. She made the breakfast. Hannah made the breakfast and Sadao helped with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. Now, both of them only said one line that the servants had gone. After that, they did not talk a little bit about the servants. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. Hannah served morning food, breakfast to the prisoner, and then she came to Sadao and said, "Why is it we cannot see clearly what we ought to do?" कि जो हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि इसको पुलिस को सौंप दें, वो हमें क्यों नहीं क्लियरली दिखाई दे रहा है. शी आस्क्ड हिम, इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली दैन वी डू. कि सर्वेंट्स तक को पता है हम क्या कर रहे हैं. वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज. हम दूसरे जापानीज से डिफरेंट क्यों हैं, हम पूरे पैट्रियाटिक क्यों नहीं हैं. सदाओ डिड नॉट आंसर, बट अ लिटल लेटर सदाओ ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज एंड सेड ब्रस्कली. ब्रस्कली होता है सडनली, एकदम से बोलता है सदाओ उस प्रिजनर को, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट. आज अपने पैरों पर खड़े होना तुम. आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 minutes एट अ टाइम. सिर्फ 5 मिनट के लिए खड़े होना अपने पैरों पर. टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस. कल डबल टाइम खड़े होना. इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल. जितना जल्दी हो सके तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हें वापस मिल जाए. और जैसे ही डॉक्टर सदाओ ने ये बोला, देयर वॉज अ फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग मैन्स फेस. फ्लिकर ऑफ टेरर मीन्स अ लिटल बिट टेरर. ही वॉज अफ्रेड नाउ एंड हिज फेस वॉज वेरी पेल. वाई वॉज ही अफ्रेड? बिकॉज मे बी द डॉक्टर, he was in a fearless sense, he was having a sense of fear that maybe Dr. Sadao could take him to the police. Okay, the boy murmured. Evidently, he was determined to say more. And it was clear that he wanted to say something more. I feel I ought to thank you. Now, he wanted to thank doctor for having saved his life. Don't thank me too early, Sadao said coldly. And when Dr. Sadao said this line, don't thank me too early, he saw the flicker of terror again. From this line, there was again a fear in the prisoner's eye, in the boy's eye. Terror as unmistakable as an animal's. That fear that we can see in an animal's face. जब एक एनिमल जो है वो फंसा हुआ होता है कहीं पे, और उसके आईज में जो टेरर होता है, the same terror was seen in the boy's eye, in Tom's eye. The scars on his neck were crimson for a moment. Crimson means red color. जो उसकी गर्दन पे स्कार्स थे, निशान थे, एकदम रेड हो गए, ब्लड दिखाई देने लगा उनमें. Those scars, what were they? But Sadao was thinking about these scars, but he did not ask that prisoner. In the afternoon, the second thing happened. अब ये second thing जो थी वो हुई. पहली क्या थी? पहली क्या बताई गई थी कि सारे के सारे सर्वेंट्स जो थे छोड़कर तीनों सर्वेंट्स चले गए. सेकेंड थिंग क्या हुई? अब सेकेंड हैपनिंग क्या हुई?
Hannah working hard on unaccustomed labor. Unaccustomed means she was not used to this hard work, because the servants did those things, but now Hannah had to do these things, so these things were unusual. And she saw a messenger come to the door in official uniform. अब जैसे ही उसने उस messenger को देखा, she was afraid that the servants had reported in to the government or to the police. Her hands went weak. एकदम वो बिल्कुल वीक होते, मतलब उसको ऐसा लगा जैसे वो उसके हैंड्स बिल्कुल वीक हो चुके हैं. एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, और उसको जैसे उसकी सांसें रुक रही हैं. द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, सर्वेंट्स ने बता दिया होगा पुलिस को. शी रैन टू सदाओ. गैस्पिंग होता है सांस फूल जाती है एकदम से और मुंह खुला का खुला उसका रह गया. अनेबल टू अटर अ वर्ड. शी कुड नॉट से इवन अ सिंगल वर्ड. But by then she wanted to say Dr. Sadao about that messenger, but by that time the messenger had simply followed her through the garden. The messenger had come behind behind Hannah in the garden, and there he stood, and there he was standing behind Hannah. She pointed at him helplessly. अब हैना कुछ बोल तो पाई नहीं और उसकी तरफ सिर्फ इशारा कर दिया. Sadao looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. Sadao was sitting in his office and one part of it was open to the garden side. What is it? He asked the messenger, and then he rose, seeing the man's uniform. खड़ा हो गया वो सदाओ जब उसने उस मैसेंजर को यूनिफॉर्म में देखा. Now that messenger said, you are to come to the palace. पैलेस में आना पड़ेगा तुम्हें. The old general is in pain again. Oh, Hannah breathed. अब एकदम हैना को लगा ये तो इतनी सी ही बात है सिर्फ कि ओल्ड जनरल जो है उसको फिर से पेन स्टार्ट हो गया है. इज दैट ऑल? कहती है बस यही है. द मैसेंजर वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एंड ही एक्सक्लेम्ड, ऑल? इज इट नॉट एनफ? क्या ये बहुत नहीं होना चाहिए? Indeed it is. So it was a discussion that was going on beyond the nervousness of Hannah. Indeed it is. I am very sorry. She said, I am very sorry that I said this line. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment. Why she was resting? More exhausted from her fright than from work. She was more exhausted, more tired from her fright, from her fear than from her work. कि इतना काम से नहीं थकती थी वो जितना वो आज डर से थक चुकी थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी, एकदम वीक हो चुकी थी. I thought they had come to arrest you, she said about her fear. He gazed down into her anxious eyes. अब वो डॉक्टर सदाओ उसकी एंशियस आइज में देख रहे हैं, जो एकदम फियर से, टेरर से भरी हुई आइज थी, उनमें देख रहा है वो. आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक. और फिर उसको बड़ा फील हुआ कि हैना को इतना परेशान होना पड़ रहा है डॉक्टर सदाओ की ही वजह से. एंड ही सेड, आई गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक. ही सेड इन डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस होता है पेन से. सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम. एक पेन किस तरह का कि वो इसको हैना को तकलीफ दे रहा है. Now Sadao goes to see the general, and now the discussion was going on between Dr. Sadao and general. Of course the general said weakly, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton. So few Japanese have. Now Dr. Sadao had told all the things about the prisoner to the general, and after that the general was saying, हाँ मुझे समझ आ रही है, सारा समझ रहा हूँ मैंने भी तो प्रिंसटन में डिग्री ली है, कुछ ही जापानीज ने ली हुई है डिग्री. सदाओ सेड, आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी. एक्सीलेंसी मीन्स जैसे हाई एक्सीलेंसी, हाई पोस्ट वाले को बोला जाता है कि मुझे उस पर्सन के बारे में, उस प्रिजनर के बारे में ज़्यादा कोई केयर नहीं करनी, हाई एक्सीलेंसी. बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस. बट हाँ कि वो मेरा ऑपरेशन जो था उसके ऊपर सक्सेसफुल रहा, एंड ही इज़ अलाइव. Yes, the general said, it only makes me feel you more indispensable to me. The general said कि जिस तरह से तुमने सक्सेसफुली उस प्रिजनर तक को भी बचा दिया, वो तो प्रिजनर था, so that makes me feel you more indispensable to me. Indispensable means that can't be avoided. It means you are very important to me. मैं तुम्हारे बिना गुजारा नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? Now it has been told. Now evidently you can save anyone. तुम किसी को भी बचा सकते हो. You are so skilled.
You say you think I can stand one more such attack I have today. कि the general had suffered from one attack and he is saying, he is asking Dr. Sadao that one more attack could be there and he could survive with that attack. कि क्या मैं एक attack और झेल सकता हूँ? Sadao said, not more than one, only one more attack you can bear. Then certainly I can allow nothing to happen to you. I can allow nothing to happen to Dr. Sadao. Dr. Sadao को कुछ भी नहीं होना चाहिए. Dr. Sadao could not be treated as a traitor. The general said with anxiety. His long, pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. The general was thinking very deeply now what to do with the prisoner. You cannot be arrested because he had just saved a prisoner and here the prisoner of war. So he said you cannot be arrested because you are needed. That person, Dr. Sadao, was needed by the general for the safety of his life. The general closed his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. पता चले तुम्हें फांसी दे दी गई, condemned to death, तुम्हें मौत की सजा सुना दी गई या फांसी दे दी गई और अगले ही दिन मेरा ऑपरेशन करने की नीड आ गई तो. There are other surgeons also, Excellency, Sadao said. None I trust. The general said, I trust none. I did not trust anyone. The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. Here, the Germans character has been shown here. He is saying, the general is saying कि यहाँ पे जो best doctors हैं उनको Germans ने train किया है. And the Germans are known for their ruthlessness, for their cruelty. और उन लोगों को, इन डॉक्टर्स को तब भी अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल लगता है. इवन इफ आई डाइड, मैं मर भी गया तब भी वो उनको ऑपरेशन सक्सेसफुल ही लगेगा. आई डो नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड. इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन the German ruthlessness with the American sentimentality. Now here he is saying कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते. बहुत गलत बात है ये कि हम जर्मन्स की रूथलेसनेस को, क्रूअल्टी को अमेरिकन्स के इमोशनल टच के साथ, सेंटिमेंटलिटी के साथ कंबाइन भी नहीं कर पाते हैं. Then you could turn your prisoner over to execution. And yet I could be sure you would not murder me while I was unconsciousness. मुझे पता है कि तुम उस प्रिजनर को भी एग्जीक्यूट भी करवा दोगे, फांसी की सज़ा भी दिलवा सकते हो, लेकिन मुझे भी जब मैं अनकॉन्शियस भी हुआ, बेहोश भी हुआ, तो तुम मुझे मरने नहीं दोगे. मुझे पता है तुम ऐसा कर सकते हो जब तुम दोनों की दोनों कैरेक्टर्स को, जर्मन्स एंड अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी को कंबाइन करो. बट यहाँ पे इफ़ द थिंग दैट द फैक्ट दैट हैड बीन टोल्ड टू द पुलिस, then Dr. Sadao would be treated as a traitor. The general laughed. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. कि क्या ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं, रूथलेसनेस, जर्मन रूथलेसनेस और अमेरिकन की सेंटिमेंटलिटी, क्या जापानीज में नहीं आ सकती? जो जनरल है वो हंस रहा है. Sadao smiled. I am not quite sure, he said, but for your sake I would be willing to try. मैं भी ट्राई करूँगा. He is saying. The general shook his head. I had rather not be the test case. तो जनरल कहता है कि काश मैं ये टेस्ट केस ना होता. इट मीन्स मैं बीमार ना होता और मुझे कोई टेस्ट केस की तरह ट्रीट ना करे. इट मीन्स मुझे मार भी देंगे एंड देन दे वुड बी सेइंग दैट द ऑपरेशन हैड बीन सक्सेसफुल. He said he felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. अब वो यहाँ पर सिर्फ थॉट्स से ही, इन परेशानियों से ही इतना ज़्यादा वो भर गया, सराउंड अप हो चुका, ओवरवेल्म्ड मीन्स भर चुका, जितना कि कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, जब वो विक्टोरियस होके आता था, व्हेन ही जस्ट गॉट विक्ट्रीज ओवर द अदर कंट्रीज, उनसे वो टायर्ड होके आता था, उतना ही ज़्यादा वो सिंपली वीकनेस से सराउंड अप हुआ पड़ा है. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वाश्ड अपॉन योर डोर स्टेप. इरिटेशन उसको हुई जनरल को. ही सेड इरिटेबली एंड ही सेड दिस मैन शुड नॉट कम टू योर डोर स्टेप. Sadao also said gently,
आई फील इट सो माई सेल्फ, कि मुझे भी यही लगता है, नहीं आना चाहिए था इसे यहाँ पर नहीं पाया जाना चाहिए था. इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली killed. The general said, not by you, but by someone who does not know him. I have my own private assassins. The general suggested one thing, that this prisoner should be killed by someone whom I know. I had my private assassins. कि तुम जिसको जानते हो ऐसे किसी से नहीं मरवाना. I had my private assassins. Assassins means murderers. अब ये इतनी हाई पोस्ट पे हैं और जो कंट्री की सेक्रेसी इनको रखनी है, सो उनके अपने भी ऐसे हायर्ड मर्डरर्स और असैसिन्स इन अदर वे यू कैन से कि ये होते हैं. सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night, and he is suggesting, Dr. Sadao, that I would send 2 of the assassins to your house today, tonight or other night. You need not know nothing about it. It is now warm, the days are warm, the nights are warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? Only you have to do one thing, that you should just keep the door open, the door where that prisoner was sleeping, the door should be opened only at night. Certainly it would be very natural, Sadao agreed. In fact, it is so left open every night. Sadao said, it is open daily. Good, the general said, yawning. They are very capable assassins. My assassins are very capable. They make no noise. They would come silently. They know the trick of inward bleeding. और वो इस तरह से उसको मारेंगे कि इनवर्ड ब्लीडिंग होगी, सिर्फ इंटरनल ब्लीडिंग होगी और कोई नॉइज भी नहीं आएगी. इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी. और अगर तुम चाहते हो तो मैं बॉडी को भी हटवा दूंगा वहाँ से. So till here in this part, because it is a long chapter, so we have to divide it into 4 parts. One more part is there, and till here we have read about that. Now Dr. Sadao, for his wife's sake, he was discussing all these things to the general, and the general had suggested that he would send 2 of the assassins to Dr. Sadao's house to get that prisoner murdered silently. I hope you have understood the chapter till here, and we will continue the next part in the rest of the chapter in the next part.